Good afternoon, ladies and gentlemen. Captain Sanjay made a very interesting observation that time has now come for government departments to run after MSEs. And I'm very proud to say that we have already been doing that for a couple of years. I have been here on this stage before, and I have addressed the same topic earlier also. My presentation is also very similar. Probably a few data must have changed here and there. But I can see the audience is different, and I can see a lot of ladies as compared to before. So that is probably a good thing, because I remember a couple of ladies are present here who were there last time also, and they have successfully registered with the railways and have started working with the railways. So I'm hopeful that this presentation again will inspire some of you to get associated with the railways. Unfortunately, my presentation is very elaborate. The last time I remember I must have spoken for at least 40-45 minutes. This time I've been given a time limit of 10-12 minutes, which has further been curtailed down to 5 minutes now. So I'll give you a very, very brief overview about the railway procurement. And my office is at Churchgate. I'm working for Western Railways. So any of you who is seriously interested in working with the railways are welcome anytime to come to my office and get detailed idea about how to get associated with the railways. My office is at Churchgate Station building itself, and I'm sure anyone who is in Bombay must be visiting Churchgate Station some or the other time. So come to the 4th floor, you're welcome, and we'll be of all assistance to you. So I'll try to finish this off very briefly. I'll give you an idea. This is how the presentation is organized. The first part is introduction to railway procurement. Second is the heart of the presentation, which is vendor approval and registration procedures. This I will have to skip, because this basically is a bit too elaborate. It gives detailed procedures regarding registration with railways. Then I have central government promotion schemes for MSEs. These have already been covered by the MSE director. Then sample items. This also, of course, I don't think we need to go into. The introduction to railways, I personally consider to be very important, because people don't generally have the idea of the scale of operations at which the Indian Railways operates. Everybody knows that it is the largest railway organization under a single management. But the uniqueness of this organization, is it a government department? Is it a commercial entity? What exactly is it? It is a government department functioning on commercial lines. We are worried about the expenditure. We are worried about our operating ratios, how much profit we make, how much loss we make in running each train. The interesting thing about Indian Railways is, at least in any industry, you won't find any parallel system that operates at such a huge scale. We do our own manufacturing. यहाँ railways में क्या है? ट्रेन्स हम बना रहे हैं, हम चला रहे हैं, स्टेशन भी हमारे हैं, ज़मीन हमारी है, ट्रैक हमारे हैं, उनको चला भी हम रहे हैं, उनको मेंटेन भी हम कर रहे हैं. This scale of operations is very unique, and despite being a government department, we are able to successfully, I am using the word successfully, you might debate it, you might say कि you are not successful, trains गंदी रहती हैं, punctual नहीं है, reservation नहीं मिलता है, दलाल घुसे रहते हैं. Problems are there, but despite all this, I would claim that we are doing a very fairly good job, because Indian Railways is a British legacy. और ब्रिटिश रेलवेज का क्या हश्र हुआ आप देखिए. ब्रिटिश रेलवेज वाज ओरिजिनली सिमिलर टू अस, दैट वाज आल्सो अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. दे सेड कि नहीं प्राइवेट में सब अच्छा होता है, प्राइवेटाइज करो. ब्रिटिश रेलवेज वाज प्राइवेटाइज, इट वेंट बैंकरप्ट. अभी उसको वापस सेमी गवर्नमेंट टाइप का स्ट्रक्चर उसका बना दिया है, तो उसकी खिचड़ी बनी हुई है. इट इज़ नाइदर हेयर नॉर देयर. सो आई फील वी आर डूइंग अ गुड जॉब. इंडियन सिनेरियो में, इंडियन कंडीशंस में, इंडियन रेलवेज इज डूइंग अ डिसेंट. दिस इज द स्केल ऑफ ऑपरेशंस. द इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर the last point, हमारा जो एनुअल रेवेन्यूज लास्ट ईयर के थे ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के थे. एक्टिविटीज़ ऑफ कोर्स दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू. हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, रेलवे बोर्ड इज़ पॉलिसी मेकिंग यूनिट. हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट्स हैं विच मैन्युफैक्चर द असेट्स. देन वी हैव जोनल रेलवेज, दैट इज़ वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे. Zonal railways which are responsible for operations and maintenance.
And RDSO is the most important entity as far as prospective vendors are concerned, because RDSO is responsible for framing of specifications as well as centralized approval of vendors and registration. Procurement, a brief introduction. Bulk procurement is done by the stores department. Now, interestingly, if you are aware, the government of India has many organized group A services. सब लोग IPS, IAS, इनकम टैक्स, कस्टम्स इनको जानते हैं, ऐसे 25 ग्रुप ए सर्विसेज होंगी. आउट ऑफ दोज 25, इंडियन रेलवेज हैज गॉट 10. सो इमेजिन a government department which constitutes almost 50% of the government of India. उसमें एक single organized service है Indian Railway Store Service. I am a part of that service, which is responsible only for procurement of goods. It is not responsible for procurement of works also. So we are dealing only with procurement of materials, and that alone itself is worth roughly 50,000 crores per annum in the Indian Railways. Only materials. This does not include materials which are supplied as part of work contracts. So imagine the scope that is opening up for you if you actually get associated with the railways. Annual procurement, like I already told you, Western Railway ka stores only material procurement, ye old figure hai, roughly 1,000 crores is Western Railway, only materials, not materials part of contracts. Ours is the only central government department to have वॉल्यूमिनस कोड. लोग बोलते हैं कि हमारा ब्रिटिश टाइम्स का कोड है, एंड आई एम प्राउड टू से कि ब्रिटिश टाइम्स के कोड्स और मैनुअल्स की वजह से हमारा सिस्टम इतना अच्छा चल रहा है. आप लोगों ने इतनी मिनिस्ट्रीज़ में स्कैम सुने, कोल स्कैम सुना होगा, कोलगेट सुना है, टेलीकॉम स्कैम सुना होगा, बट रेलवेज़ में ऐसा स्कैम क्यों नहीं हुआ है? डिस्पाइट हैविंग रेवेन्यूज़ वर्थ 2 लाख करोड़, 50,000 करोड़ का केवल मटीरियल हम लोग खरीदते हैं, पर फिर भी आपने रेलवे में कोई स्कैम नहीं सुना है. द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ कि वी फॉलो रूल्स प्रोसीजर्स वेरी रिगरसली. ब्रिटिश टाइम्स के कोड्स हैं, अच्छे बने हुए हैं, और उनको टाइम्स के साथ हमने चेंज जरूर किया है, ट्रांसपेरेंसी लाए हैं, ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट इंट्रोड्यूस किया है, बट बेसिक स्ट्रक्चर वी हैव नॉट टच्ड एंड वी हैव नॉट डैमेज. सो उसकी वजह से देयर आर नो स्कैम्स. देयर हैज नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ रेलवेज यू विल नेवर फाइंड अ सिंगल स्कैम. ऑफ कोर्स वी हैव बीन चेंजिंग विद द टाइम्स. टेंडरिंग प्रोसीजर इज 100% ऑनलाइन. आप घर बैठे ऑफर भरिए, आपको अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ सिस्टम वेयर द ऑर्डर विल आल्सो बी डिलीवर्ड ऑनलाइन. IREPS, गूगल पे जाके IREPS टाइप कीजिए, इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम. इट विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया हाउ द सिस्टम्स फंक्शन ऑन इंडियन रेलवेज. आपको परचेज ऑफिस जाने की जरूरत नहीं. आई एम डीलिंग विद प्रोक्योरमेंट ऑफ स्पेयर्स फॉर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स. पिछले एक साल में मैंने कम से कम नहीं तो 500-600 ऑर्डर साइन किए होंगे, और उन 500-600 ऑर्डर्स में किसी भी वेंडर से मेरी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है. हमारे यहाँ पे सिस्टम है कि परचेज ऑर्डर स्पीड पोस्ट से डिस्पैच होते हैं विद इन 2 days ऑफ साइनिंग. तो पहले एक ज़माना होता था जब वेंडर्स को लगता था कि रेलवे का सिस्टम एक क्लोज सिस्टम है, उसमें कुछ गिने चुने लोग ही घुस सकते हैं, जूते चप्पल घिस जाएंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा. रजिस्ट्रेशन हो भी गया तो ऑर्डर मिलने के लिए पता नहीं कितने धक्के खाने पड़ेंगे. ऑफिस में जाओ, बाबू के हाथ जोड़ो, साहब के हाथ जोड़ो, ऐसा कुछ नहीं है. टाइम्स हैव चेंज्ड, और हमारे यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन इज़ देयर. ऑर्डर्स आपको टेंडर ऑनलाइन अपने ऑफिस से भरिए, और आपको स्पीड पोस्ट से परचेज ऑर्डर घर पे आपको ऑफिस में मिलेगा. पेमेंट, एडवांस पेमेंट इज़ अ मिसनोमर. हम लोग पहले एडवांस पेमेंट दिया करते थे. रेलवे में अभी एडवांस पेमेंट का सिस्टम बंद हो चुका है. हम लोग एडवांस पेमेंट किसको बोलते हैं? नॉर्मली इफ़ यू सप्लाई मटीरियल, आपको पेमेंट तब मिलेगा जब वो मटेरियल हम लोग इंस्पेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेंगे और रेलवे की बुक्स पे आ जाएगा. देन यू आर सपोज टू गेट द पेमेंट फॉर दैट. बट वी डोंट डू दैट. हम लोग थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर डिलीवरी चलान एंड द थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट विल गिव अप टू 98% पेमेंट. दैट इज वाई वी कॉल इट एडवांस पेमेंट, बिकॉज हमने उस मटीरियल को एक्सेप्ट नहीं किया है, बट हमने आपका पेमेंट कर दिया है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एडवांस पेमेंट. स्पेयर पार्ट्स, दीज आर द आइटम्स वी परचेज. अब हम इंडियन रेलवेज इज सच अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन. एक बॉल पेन से लेके वेरी सोफिस्टिकेटेड जनरेटर्स, लोकोमोटिव्स, everything under the sun, I can say everything under the sun we purchase. So everybody sitting here will have some or the other opportunity to be associated with the railways. This is the face of the website. इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक मेरे को टिडबिट याद आती है. गैंग्स ऑफ वासेपुर में कोई एक डायलॉग था, जब वो जो इंडियन रेलवे का, जैसे मैंने बताया कि 50,000 करोड़ का एनुअल मटेरियल प्रोक्योरमेंट है, तो उससे आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो स्क्रैप सेल होता है उसका कितना वैल्यू होगा. बिल्कुल आपको रूल ऑफ थंब से भी गेस करने को बोला जाए तो 10% का फिगर ले लीजिए. आवर एनुअल स्क्रैप सेल इज़ वर्थ 5,000 करोड़.
तो स्क्रैप परचेज इटसेल्फ इज़ अ बिग बिजनेस एक्टिविटी। तो स्क्रैप से रिलेटेड आपके इसमें गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक कुछ डिस्कशन हो रहा था कि अरे यार रेलवे ने तो अपना स्क्रैप सेल ऑनलाइन कर दिया है, हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट भी ऑनलाइन किया, स्क्रैप सेल भी ऑनलाइन किया है, तो अब तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा, या आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डायलॉग, बट द क्रक्स ऑफ द इशू वाज, बोलता है अरे ऑनलाइन सेल करने से क्या होता है, माल खरीदने वाले को माल लेने के लिए तो डिपो में ही जाना पड़ेगा, आने तो वहाँ देख लेंगे उसको। सो ऑनलाइन चीज़ हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। मटेरियल देने के लिए आपको फिजिकली डिपो में तो ट्रांसपोर्ट करके देना ही पड़ेगा, आप ऑनलाइन मटेरियल डिलीवरी तो शायद अभी नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। एंड आपको मैं इनवाइट करता हूँ कि रेलवे से जुड़ें, आपको प्रॉब्लम्स कम से कम आएंगी, ऐसा मेरा एश्योरेंस है, एज़ कम्पेयर टू बिफोर। पहले ज़माना अलग था, अभी समय बदल गया। आई वेलकम यू, और यहाँ से जो मेरा पार्ट 2 ऑनवर्ड्स आई थिंक आई विल स्किप। जिसको इंटरेस्ट है वो कभी भी हमारे ऑफिस में यू आर वेलकम। इसमें बस इतना बता देता हूँ कि हम लोगों के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है 3 तरीके से होता है। जो लो वैल्यू प्रोक्योरमेंट है उसको हम लोग 15 लाख तक का लो वैल्यू प्रोक्योरमेंट बोलते हैं, वो डिविजनल और डिपो लेवल पे उसका लोकल परचेज का रजिस्ट्रेशन होता है। देन हेडक्वार्टर परचेज, दैट इज़ द मेन फंक्शनल यूनिट। अभी हमारे मंत्री जी ने डेलीगेशन ऑफ पावर्स बढ़ा दिए हैं। पहले रेलवे बोर्ड लेवल पे बहुत बल्क परचेज हुआ करता था, मंत्री जी कहते हैं कि नहीं, बोर्ड का कोई काम नहीं है, ये जोनल रेलवे शुड बी फुल्ली एम्पावर्ड। तो अभी हमारे पास जोनल रेलवे में अभी फुल टेंडरिंग की पावर आ गई है। सो बल्क परचेज इज़ नाउ हेडक्वार्टर्स, दैट इज़ वेस्टर्न रेलवे को अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है खुद खरीदने की फुल पावर है। तो मेन रजिस्ट्रेशन इज़ रेलवे रजिस्ट्रेशन। लेकिन उसके अलावा एक तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है कि हम लोगों के जो सेफ्टी और मिशन क्रिटिकल आइटम्स होते हैं उसमें इंडिविजुअल रेलवेज़ को रजिस्ट्रेशन की पावर नहीं है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैसेंजर की लाइव्स जिन पे डिपेंड कर सकती हैं उस टाइप के कंपोनेंट्स के लिए हमारे यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड अप्रूविंग एजेंसी है। सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें RDSO मैंने आपको पहले ही बता दिया, रिसर्च डिज़ाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये लखनऊ में है। उसका रजिस्ट्रेशन इज़ समथिंग लाइक मोक्ष की प्राप्ति। कोई भी रेलवे का वेंडर होगा वो अगर चाहे कि RDSO का रजिस्ट्रेशन हो जाए तो वो पूरी इंडियन रेलवेज़ की बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन अप हो जाती है, आपको इंडिविजुअल रेलवेज़ में धक्के खाने नहीं पड़ते हैं। उसके अलावा CLW चितरंजन लोकोमोटिव जहाँ पे इलेक्ट्रिक लोकोज बनते हैं, DLW डीजल लोकोमोटिव जहाँ डीजल लोको, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, बट RDSO इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसके बाद इम्पॉर्टेंटली ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं, आप तीनों में इकट्ठे अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। कि लोकल परचेज में ऐसा नहीं है कि पहले आप लोकल ही रजिस्टर कीजिए फिर हेडक्वार्टर में आपका अप्रूवल होगा उसके बाद RDSO में होगा, ऐसा नहीं है। आप तीनों जगह इकट्ठे अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसके बाद का प्रोसीजर ऑफ कोर्स इज़ द डिटेल्ड प्रोसीजर विच आई वुड लाइक टू स्किप, एंड आई से आई होप आई हैव स्टक टू माई टाइम लिमिट, otherwise this presentation is still 30 minutes more from being concluded. Thanks a lot. Thank you, And Mr. anyone Arun of Kumar. you, whoever is interested is welcome to visit my office at Churchgate, 4th floor. Thanks a lot. Thank you.